So, good morning, students. Today we are going to revise chapter number 11, I believe. That's 3D geometry for class 12. Okay. So, I believe we are done with the vectors. So, have the basic information of the vectors, the I component, J component, K component, and we shall move ahead with chapter 12, chapter 11, 3D. So, the first topic here for the day would be direction ratios and direction cosines. Now, consider for this 3D plane, I have a point A, and the coordinates for point A are x, y, z. If I consider a vector for this, there would be a vector, and this a vector would be xi cap plus yj cap plus zk cap. X, y, z are the coordinates for point A. So the vector component for A would be axi cap, yj cap, and zk cap. The direction ratios in this case would be x, y, z. These are my direction ratios, x, y, and z. The next thing I need to find is direction cosines. Direction cosines are generally denoted by L, M, and N. Now, what is this L? Consider this vector A is making an alpha angle. This vector A is making an alpha angle with x-axis. This vector A is making an alpha angle with x-axis. Okay, so here it is. Consider this is angle alpha. So the L would be cos alpha, that would be equal to x upon a vector ka magnitude. A vector ka jo magnitude hai, I believe we already know about that. The magnitude, if I consider the magnitude for a vector, that would be equal to x square plus y square plus z square in under root. So if a vector is making an alpha angle with the x-axis, then L will be denoted as cos alpha, and this would be equal to x upon cos alpha. Now consider this with y-axis, this is making beta angle. So M would be cos beta, and that would be equal to y upon में a vector का magnitude. Y जो इसका y-axis पे coordinate है, और a vector का total का magnitude. Now consider this same vector is making a gamma angle with z-axis. These are my axes. If I consider you, this is my x-axis, this is my y-axis, and this is the z-axis. So if this is making a gamma angle with the z-axis, then I can say n can be denoted as cos gamma. That would be equal to z upon a vector ka magnitude. So basically, my direction cosines that are L, M, and N, अगर इसको कोऑर्डिनेट्स में देखा जाए तो दैट वुड बी इक्वल टू x अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, y अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड z अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड. Also there is one very important thing, that is L square plus m square plus n square is always equal to 1. L square plus m square plus n square, अगर इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो आंसर वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1. So this is very important that you must remember. Direction cosines are my coordinates x, y, z. Direction cosines are denoted by element, that would be equal to x upon a, y upon a का magnitude, z upon a का magnitude. और अगर एंगल के फॉर्म में देखा जाए तो इट वुड बी cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा. पहला क्वेश्चन है मेरे पास. क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन मेक्स अ एंगल ऑफ 90 डिग्री with x-axis. So my alpha is 90 degree. Then it is making 135 degree with y-axis. So the beta is 135 degree. And 45 degree with the z-axis. So the gamma is 45 degree. Now I need to find the direction cosines, that is L, M, and N. So L will be equal to cos 90, and cos 90 is 0. M would be equal to cos 135. Now cos 135 can be written as 180 minus 45. This is in the second quadrant. Second quadrant में cos negative हो जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगी क्योंकि 180 से जा रहा है. तो दैट वुड बी माइनस cos 45. cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2. minus cos 45 is minus का 1/√2. Third, n is cos 45. Cos 45 because gamma angle is 45. So n would be equal to cos 45, and cos 45 is 1/√2. So the direction cosines I have over here is 0, minus का 1/√2 plus का 1/√2. These are my direction cosines, and that is my final answer for you. Okay. Next question. Can I find the direction cosines of a line which makes equal angle with the coordinate axis?
Now the line is saying me, the question is asking me that these are making equal angles. What do you mean by equal angles? Equal angles means alpha, beta and gamma are equal. If alpha, beta, gamma are equal, then cos alpha, cos beta and cos gamma will also be equal. And this all are equal, I can say L is equal to M is equal to N. Now there was one important thing I already told you, that L square plus M square plus N square is 1. Now since L, M and N are equal, I can write L square plus L square plus L square, that is 1. L square, L square, L square is 3L square is equal to 1. L square is equal to 1 by 3. And if I take the value of L over here, it would be 1 by root 3. So L is 1 by root 3. And that is the same for my alpha, beta and gamma are same. L, M, N are same. So L, M, N is equal to 1 by root 3. That's my direction cosines. Okay. Next question. In next question, I have been given with the direction ratios that are minus 18, 12 and minus 4. If I consider a vector for these direction ratios, अगर मेरे को इन direction ratios से vector बनाना है, so I can say minus 18 I cap plus 12 j cap minus 4 k cap. Second thing, I need to find the magnitude for this vector. That would be equal to 324 plus 144, 16, and that is 484. 484 ka under root 22. So that is my magnitude for A vector. Now L would be equal to x upon A vector ka magnitude, so minus 18 upon 22. Y would be equal to M would be equal to y upon A vector ka magnitude, that is 12 upon 22, and Z would be equal to minus ka 4. N would be equal to Z upon A vector ka magnitude, that is minus ka 4 upon 22. So the values have been same over here. If you see this 18, we have written it over here. Then secondly, it was 12, which is here. And the third is minus 4, that is here. The next thing is the next thing was magnitude. So this magnitude 22 has been written over here, here and here. So the final answer, अगर मैंने इनको काट देता हूँ 2 से, तो minus 9 by 11, 6 by 11 and minus 2 by 11, that are my direction cosines. That's my final answer. Okay. Moving ahead. Can I find the direction cosines of the sides of the triangle whose vertices are A, B, B, C, A, B and C? The vertices have been given to me, but I need to find sides of triangle. I need to find for sides of triangle. So when I need to find for sides of triangle, मेरे को पहले इन साइड्स के लिए वेक्टर निकालना पड़ेगा. So the first vector is AB vector. AB vector क्या होगा? -1, -3, 1, -5 and 2, -4, that is 2 plus 4. अगर इसको कंसोलिडेट करें, so I will get minus का 4i cap, minus का 4j cap plus 6k cap. Then I need to do the same thing for BC vector and the same thing for CA vector. Okay, nothing is over here. Let me write it. So for CA vector, when I write, it would be -5 j cap, -5 j cap. So the result I will get over here is -8i minus 10j plus 2k cap. So I have got AB, BC and CA vector. अब डायरेक्शन कोसाइंस के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था? x अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, y अपॉन ए वेक्टर का, z अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. So what I need to do is I need to find the magnitude for AB vector, BC vector and CA vector. So AB vector का मैग्नीट्यूड आ रहा है √68. The formula is same, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर. For BC vector it is again 68 minus 4 का स्क्वायर minus 6 का स्क्वायर minus 4 का स्क्वायर. And for CA vector it is 168. Now for each of them, I need to find the direction cosines. Let me do it for AB vector first of all. For AB vector, what have we done for AB vector? This -4 has been placed over here. Then the y component -4 has been placed over here. And then 6 has been placed over here. And the magnitude 68 has been given in the denominator. For BC vector, what other points I have? If I check for BC vector, so I have -4 that has been given here. Then I have -6. This -6 is here. And -4. This is -4. And the denominator, in denominator, we have the magnitude that is √68. Similarly, for CA vector, I can say -8. This is your -8. -10. And this is 2. So the 2 has been given over here. Also, its magnitude is 168. So 168 has been given in the denominator for all of them. So for all of these vectors, for AB vector, BC vector and CA vector, I have found the direction cosines. But if the vertices are given, you must remember कि पहले हमको AB vector, BC vector और CA vector का
पहले वेक्टर कंपोनेंट निकालना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड. ओके, मूविंग अहेड. Find the angles at which the direction ratios 2, -1, 2 is inclined to each of the coordinate axis. अब मेरे को एंगल निकालना है. एंगल क्या था आपको याद हो, cos alpha is equal to x upon a vector का मैग्नीट्यूड. So first of all let me find the my a vector. So a vector is given as 2i cap minus j cap plus 2k cap as per my direction ratios. The direction ratios which have been provided over here. I have used these direction ratios to find my a vector. Once my a vector is available, what can I say is a vector का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 2 का स्क्वायर minus 1 का स्क्वायर, that is √9 or that is equal to 3. Now the formula, if you remember, cos alpha was given as x upon a vector का मैग्नीट्यूड, cos beta was y upon a vector का मैग्नीट्यूड, and cos gamma is z upon a vector का मैग्नीट्यूड. Let me put these values over here. Okay, so I have cos alpha, I have cos beta, and I have cos gamma. Once again, this 2 has been put over here. This was -1, the component for j vector, it is here, and this 2 once again is here, and 3 is the magnitude which has been put in the denominator for all of them. So if I need to find alpha, that would be cos inverse 2 by 3, the beta would be cos inverse -1 by 3, and gamma would be cos inverse 2 by 3. So that is my final answer for the angles. I have found alpha, beta, and gamma. You must remember this formula in black. Cos alpha x upon a vector का magnitude, cos beta is y upon a vector का magnitude, and cos gamma is z upon a vector का magnitude. So this was all about direction ratios and direction cosines. Now the very first topic we need to read over here is equation of a line passing through a point and parallel to a given vector. एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट से पास हो रही है और एक गिवन वेक्टर होगा जिसके वो पैरेलल है. So first of all, let me draw my coordinate axis. On this coordinate axis, I have a line. This red one is my required line, which is passing through point A. अब ये point A के coordinates मान लिए मैंने x1, y1, z1 है. अगर इस point के coordinates x1, y1, z1 है, तो इस पे बनने वाला जो A vector होगा, ये जो A vector origin से इसका जो position vector है, वो क्या होगा? x1 i cap, y1 j cap और z1 k cap. Secondly, I have given as one vector which is parallel. And this parallel vector is already provided to me, that I have shown in green. This is the parallel vector to this line, and this parallel vector is given as ai cap plus bj cap plus c k cap. ये जो parallel vector के coordinates हैं a b c, इसके जो direction ratios हैं या ai cap, bj cap, c k cap, ये आपको already provided होंगे, given होंगे. Now the next thing I need to consider is, मैंने कहा let take any point p on the required line. जो मेरी रेड वाली लाइन है, इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया p, और p के कोऑर्डिनेट्स में मान के चलता हूं xyz. याद रखें हमेशा, जब भी हमको जो भी पॉइंट, अगर हम फाइनल अपना रिजल्टेंट वेक्टर के लिए पॉइंट ले रहे हैं p, उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा xyz होंगे, और उस p पॉइंट पे बनने वाला वेक्टर हमेशा r वेक्टर से डिनोट होगा. दिस r वेक्टर इज माय रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दिस p इज द फ्लोटिंग पॉइंट. ये पूरी लाइन पे आप कहीं भी ले सकते हैं. मैंने कहा मान लो ये p पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स xyz हैं, और ये r वेक्टर बन रहा है, तो r वेक्टर जो होगा दैट वुड बी डिनोटेड एज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. ये p पॉइंट के लिए जो r वेक्टर बना है वो उसको हमने वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर दिया. अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो AP वेक्टर है, AP वेक्टर ये जो बन रहा है A से P तक जा रहा है, ये P वेक्टर के पैरेलल है, और पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर्स कैसे होते हैं? AP वेक्टर वुड बी इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर, क्योंकि AP वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा. तो AP वेक्टर इज गिवन एज, हमने ले लिया लैम्डा B वेक्टर. नाउ इन ट्राइंगल OAP, this is my O. In triangle OAP, if I take, so I can say by the triangle law, I can say OP vector जो होगा that would be equal to OA vector plus AP vector. OA vector plus AP vector. देखें जहां OA वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से AP वेक्टर शुरू हो रहा है, तो OA वेक्टर का इनिशियल और OP वेक्टर का इनिशियल सेम है, AP वेक्टर का फाइनल और OP वेक्टर का फाइनल सेम है. सो आई कैन से OP वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस OP वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ. AP वेक्टर को हमने, OP वेक्टर को R वेक्टर लिखते हैं, OA वेक्टर A वेक्टर है, और AP वेक्टर मैंने ऊपर देख लिया है क्योंकि वो B वेक्टर के पैरेलल है, तो इट कुड बी रिटन एज लैम्डा B वेक्टर. दिस इज ऑल फॉर दिस. ओके, दिस इज माय वेक्टर फॉर्म फॉर अ लाइन. एक ऐसी लाइन जो A पॉइंट से गुजर रही है और B वेक्टर के पैरेलल है,
उसकी जो इक्वेशन होगी वेक्टर फॉर्म में, दैट वुड बी गिवन एज ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर इज द वेक्टर फॉर दैट पॉइंट, जिस पॉइंट से वो गुजर रही है, जिस पॉइंट से वो पास हो रही है, और बी वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसके वो पैरेलल जा रही है। ओके, सो जस्ट मेक श्योर यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। ए वेक्टर वो वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट के लिए है जिस पॉइंट से वो पास हो रही है लाइन। और दूसरी चीज जो है हमारी, जो ये बी वेक्टर है, दिस बी वेक्टर इज माय पैरेलल वेक्टर, द बी वेक्टर इज माय पैरेलल वेक्टर, जिस वेक्टर के ये पैरेलल थी। सो मेरी वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, दिस इज माय वेक्टर फॉर्म। अब अगर वेक्टर फॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है कार्टेशियन फॉर्म भी होगी। कार्टेशियन फॉर्म इज जनरली जहां पर मैं एक्स वाई जेड और या फिर एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में, कार्टेशियन फॉर्मेट में इन वेक्टर्स को डिनोट करता हूं। So what I can say is this is my a vector which has already been provided, b vector has been provided, r vector has been provided, ये सारी चीजें मेरे को यहाँ पर ऑलरेडी गिवन थी। ओके, तो इसके बाद वेक्टर फॉर्म थी r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। अगर मैं इसको डिनोट करूं, ध्यान से देखें, तो इस r वेक्टर के लिए एक एक चीज मैं अलग अलग बताता हूँ। ये जो r वेक्टर था, ओके, ये जो r वेक्टर था, ये आर वेक्टर किससे बन रहा था, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो ये मैंने यहाँ पर आर वेक्टर के पॉइंट्स लिखे, ठीक है। फिर दूसरी चीज थी मेरे पास ए वेक्टर। ये जो ए वेक्टर था x1 y1 z1 से बना था, सो दिस इज x1 y1 एंड z1, दिस इज माय ए वेक्टर। लैम्डा हैज बीन गिवन एज लैम्डा, लैम्डा की कोई चेंज नहीं किया है, लैम्डा को लैम्डा रखा। और ये जो बी वेक्टर था, यहाँ पर आपको राइट साइड में भी ये ग्रीन में दिख जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, दिस इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये मैंने एज इट इज लिखे। इसके बाद ये जो x1 y1 z1 था, इसको मैं लेफ्ट में ले गया तो ये माइनस में चला गया, और राइट हैंड साइड पे क्या बचा मेरा, लैम्डा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब ध्यान से देखें, यहां पर आने के बाद मैंने कहा ये वाला एक्स आई कैप और ये वाला x1 आई कैप, क्या मैं इसको अकेले लिख सकता हूं? तो मैंने लिखा x माइनस x1 आई कैप। सिमिलरली ये जो दूसरा है आपका, लेट मी शेड इट इन अदर कलर, रेड ले लेते हैं, ये जो वाई जे कैप है माइनस वाई वन जे कैप, तो ये मेरा क्या बन गया, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन। जैसे मेरा एक्स माइनस एक्स वन बना था, इसी तरह मेरा वाई माइनस वाई वन बन गया। एंड नेक्स्ट थिंग इज, ये जेड में से, इस वाले जेड में से ये वाला जेड वन के कैप माइनस हुआ, तो ये बन गया मेरा जेड माइनस जेड वन के कैप। एंड दिस इज इक्वल टू ए आई बी जे एंड सी के। अब अगर आप कंपेयर करें आई वाला आई से, वाई वाला जे वाला जे से, और के वाला के से, आई वाला आई से, जे वाला जे से, और के वाला के से, तो मैं फाउंड व्हाट आई फाइंड इज एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा ए, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा बी, और जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्डा सी। I just compared the components I कैप का I कैप से, J कैप का J कैप से, K कैप का K कैप से। So I found x minus x1 is equal to lambda A, y minus y1 is equal to lambda B, and z minus z1 is equal to lambda C। यहां से मैं ये कह सकता हूं कि x minus x1, y minus y1, z minus z1, ये सब किसके बराबर हैं? They are all equal to lambda. They are all equal to lambda. So this is my Cartesian form. This is my Cartesian form. X minus x1 upon a, y minus y1 upon b, or z minus z1 upon c, where a, b, c are the points for b vector. x1, y1, z1 are my points for a vector, or the point that was through which the line was passing. तो जो सबसे ऊपर आपको दी हुई है that is my vector form, जो सबसे नीचे दी हुई है that is my Cartesian form. Okay, these are the two forms that you need to remember. बाकी ये सारी थ्योरी या ये बाकी सारा जो आपका डेरिवेशन है ये नहीं याद रखना है। वेक्टर फॉर्म क्या है, कार्टेशियन फॉर्म क्या है, बस ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i 2j minus 2k। सो 1 2 3 से पास हो रही है तो मेरा ए वेक्टर आ गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, क्योंकि जिस पॉइंट से पास हो रही है वो ए वेक्टर बनाता है। बी वेक्टर मेरा क्या बनाया हुआ है, जो पैरेलल वेक्टर है 3i प्लस 2j minus 2k। So vector form is r vector is equal to a vector plus lambda vector lambda b vector। r vector को r vector छोड़ेंगे, a vector की जगह a vector, b vector lambda की जगह lambda, और b vector की जगह b vector। So I got my vector form। Next is my Cartesian form। Now Cartesian form is x minus x1, y minus y1 और z minus z1।
लेट मी राइट इट ओवर हेयर, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखें x1 इज 1, तो x माइनस 1, देन y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2, x1 y1 z1 आर माई पॉइंट्स फॉर a vector and z minus 3. Then it is asking me ABC are my coordinates for b vector. So here I get 2, here I get 2 again, in first I get 3, then I get 2, and z minus 3 upon minus 2. Okay, so these are my for ABC, these are my values for a, b and c, the b vector, and these are my values for x1, y1 and z1. So this is my Cartesian vector form, and this is my Cartesian. So I get both of the forms over here. This is how I define the equation of a line. Now here, if I consider x plus 3, y minus 4, z plus 8, 3, 5, 6, I need to give the answers for them. So x minus 3 is my regular form, x minus x1. So the a vector is minus का 3i cap. Then y minus y1 की जगह मेरा 4j cap आ जाएगा, और 8 z minus minus 8, z minus minus 8. So what I will find it over here is, यहाँ पर आ जाएगा मेरा माइनस का 8 k cap, माइनस का 8 k cap. And if I talk about the b vector, the b vector would be जो नीचे वाले पॉइंट्स है 3i cap plus 5j cap plus 6k cap. Okay, so if I need to write my r vector, I can say r vector is equal to माइनस का 3i प्लस का 4j माइनस का 8k प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो नीचे वाले पॉइंट्स है 3i प्लस 5j प्लस 6k. सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, अनदर क्वेश्चन. ए वेक्टर क्या होगा, माइनस 2i कैप, क्योंकि प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 4j कैप और प्लस का 5k कैप. लेट मी टेल यू वंस अगेन, the original equation is x minus x1, y minus y1 and z minus z1. So I have y1 and z1 4 and 5 intact, but x minus x1 it could be written as x minus minus 2, so my x1 is minus 2. Then b vector जो नीचे वाले हैं minus 1 i cap plus 8 j cap plus 4 k. So if I need to find the vector form, so r vector would be equal to minus 2i plus 4j plus 5k plus lambda minus 1i या minus I plus 8j plus 4k. So these are my vector equations for the lines which were given in Cartesian form. Now the second question we have over here is convert in Cartesian form. So Cartesian form में convert करना बहुत ज्यादा आसान है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको a vector यहाँ से साफ साफ दिख जाएगा. This is my a vector, this is my a vector and this is my b vector. जो lambda का कोफिशिएंट है वो b vector है, जो नहीं है वो a vector है. ठीक है. So what I have is a vector is 3i plus j minus 2k, 3i plus j, 3i plus j. So there is nothing over here, just wait for a while. 3i plus j होगा तो ये कुछ नहीं है, 3i plus j and b vector is I minus j minus 2k. So I have got my a vector and b vector. The equation was, what was my equation? Let me write the equation first of all. Equation was x minus x1, y minus y1, z minus z1. अपॉन में आएगा a, b वेक्टर वाले कंपोनेंट्स b और c. So what I have over here is x minus 3, y minus 1 और z minus minus 2 तो z plus 2 अपॉन में 1 minus 1 और minus 2. सिमिलरली यहां पर भी अगर दोबारा से देखेंगे,
दूसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है. दिस इज माई ए वेक्टर, दिस इज माई ए वेक्टर एंड this is my b vector. Okay, so what I have in a vector is 2i cap minus 1j cap minus 56k cap. In b vector I have 3i minus 5j minus 4k. Same pattern in the red. I have already written the equation over here. जो फॉर्मेट है बेसिक, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर, जस्ट गिव मी अ सेकंड. यहाँ पे ये बनेगी x minus 2, y minus minus 1 is y plus 1 and z minus 56 that is z plus 56 अपॉन में 3 माइनस का 5 and minus का 4. So that is my required answer in the Cartesian form. So I believe we have now conquered the situation where I can convert vector to Cartesian and Cartesian to vector. Moving ahead, the first point is angle between two lines. So now consider we have two lines, r vector is equal to a1 plus lambda b1 and a2 plus lambda b2. So in this case, cos theta is always given between b1 vector and b2 vector. Okay, you must remember one thing, the theta, the angle is always between the b1 vector, because these are the parallel vectors. a1 and a2 are the point vectors, so they do not contribute to the angle. b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वही हम लोग कंसीडर करते हैं. और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? In order to find the angle between two vectors, what you need to do is पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड into b2 का मैग्नीट्यूड. This formula we have already studied in vectors. Okay, so if two vectors have been given and we need to find the angle between them, through the dot product formula we can say cos theta would be equal to b1 dot b2 upon में b1 का magnitude b2 का magnitude. Now consider the b1 vector is given as a1 I cap, b1 j cap and c1 k cap, and b2 vector is given as a2 I cap plus b2 j cap plus c2 k cap. So for the parallel lines, अगर ये lines parallel है, अगर ये lines parallel हैं तो b1 vector would be equal to lambda b2 vector, b1 vector equal to lambda b2, या फिर मैं क्या कह सकता हूं कि a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, ये सब क्या होंगे? बराबर. यदि ये दोनों वेक्टर्स के कोई भी पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग हैं या फिर इक्वल हैं, तो आई कैन से दीज लाइंस आर पैरेलल, दीज लाइंस आर पैरेलल. परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? 0. perpendicular lines में b1 vector dot b2 vector would be 0. So in Cartesian form I can set a1 dot a2 plus b1 dot b2 plus c1 dot c2. This would be equal to 0. यदि ये 0 हो जाते हैं तो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, यदि ये कॉरेस्पॉन्डिंग है तो लाइंस कैसी हैं? पैरेलल. लाइंस कैसी हैं? पैरेलल. सो दिस इज दिस लेफ्ट हैंड साइड पे ये फॉर्मूला cos थीटा का और पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस की ये कंडीशन आपको याद रखनी है. नाउ दिस आई हैव द क्वेश्चन ओवर हियर. माय b1 वेक्टर, व्हाट इज माय b1 वेक्टर? If I ask you about the b1 vector, so the b1 vector is minus 3 I cap plus 2k j cap plus 2k cap. Now you must feel the difference between this k and k cap. This k cap is for the z axis and this k has been given as the constant. Now my b2 vector is given as 3k I cap plus j cap, 1 j cap minus 5 k cap. अब according to question, these lines are perpendicular. These lines are perpendicular. और perpendicular lines के लिए मेरे को पता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? 0. b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0. According to question I can say, since it has been according to question, lines are perpendicular. Lines are perpendicular. So b1 vector dot b2 vector would be equal to 0. b1 vector dot b2 vector would be equal to 0. So what I can say over here is minus 3 into में 3k
प्लस 2k इंटू में 1 प्लस 2 इंटू -5 would be equal to 0. So I can say minus का 9k प्लस का 7k प्लस का 2k माइनस 9k प्लस का 2k minus 9k plus 2 minus 10 would be equal to 0 या I can say minus का 7k और ये minus 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा. So the value I am getting is k की जो वैल्यू आ रही है that is minus का 10 upon में 7 minus का 10 upon में 7. So that is my value for k. The only thing I need to remember is if the lines are perpendicular, then b1 vector dot b2 vector must be equal to 0. Moving ahead. In this case, find the angle between the following pair of lines. इस बार मेरे को एंगल निकालना है. इस बार मेरे को एंगल निकालना है. तो सबसे पहले b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है b1 डॉट b2, b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड. राइट हैंड साइड पे सबसे ऊपर मेरे को फॉर्मूला पता है. तो b1 डॉट b2 क्या हो जाएगा 2 इंटू में सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट नो वेयर आर माई b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर्स. राइट. So this is my b1 vector, this is my b1 vector, and just below that with mu, this could be lambda, mu, t, s, anything could be there, just a constant. Okay, this is my b2 vector. Now my b1 vector dot b2 vector would be equal to 3 into में 1 plus 2 into में 2 plus 6 into में 2. So that would be equal to 3 plus 4 plus 12. So that would be equal to 19. Now b1 vector का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36. So that is root 49 और I can say 7 directly. b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 9, या फिर डायरेक्टली बात करें तो 3. अब बात करते हैं cos थीटा की. तो b1 डॉट b2 की वैल्यू आ गई 19, b1 का मैग्नीट्यूड आ गया 7, b2 का मैग्नीट्यूड आ गया 3. सो दैट वुड बी 19 अपॉन में 7 3 21, और ये जो cos है ये इधर आके क्या हो जाएगा cos इनवर्स. सो थीटा इज cos इनवर्स 19 अपॉन 21. दैट्स माय फाइनल आंसर. हमने लेफ्ट साइड पे b1 b2 b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लिया, ताकि हम लोगों को फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज आसानी से हम लोग पुट कर सकते हैं. ठीक है. सो जस्ट मेक श्योर यू डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस. नाउ I need to show that these lines are perpendicular to each other. First of all, b1 vector and b2 vector कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है. कार्टेशियन फॉर्म में अगर मेरे को b1 वेक्टर निकालना है, सो दिस इज माय b1 वेक्टर जो ये नीचे वाला है, और b2 वेक्टर कहां दिया होगा, दूसरी लाइन जो दी हुई है, दिस इज माय b2 वेक्टर. So let me write the notations over here. The b1 vector is 7 I cap minus 5 j cap plus का k cap. The b2 vector would be I cap plus 2j cap plus 3k cap. Now since these lines are perpendicular, I need to show that these lines are perpendicular. Let's multiply b1 dot b2, b1 dot b2. So let me find the solution for b1 dot b2. b1 dot b2, b1 dot b2 किसके बराबर आएगा, देखें 7 इंटू में 1 प्लस -5 इंटू में 2. आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से. सो दिस वुड बी इक्वल टू 7 minus 10 plus का 3, that is equal to 0. That is equal to 0. So what I can say is, since b1 vector dot b2 vector का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आ रहा है, the lines are perpendicular to each other. The lines are perpendicular to each other. अगर आपका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब लाइंस जो डॉट लाइंस है परपेंडिकुलर है,
और डॉट प्रोडक्ट B1 और B2 का, डॉट प्रोडक्ट B1 और B2 का. So you make sure you do not put anything wrong over here. Okay, so moving ahead. Kara, find the values of P so that these lines are at right angles. These lines are at right angles. First of all, if you see the format I have, the general format I have is x minus x1, y minus y1, and z minus z1. Okay, so the general format I have is, the lines should be in the format x minus x1 upon में a, y minus y1 upon में b, and z minus z1 upon में c. But if you look at these lines, this is 1 minus x, 7y minus 14, z minus 3. So these are not the correct formation. Let me put them correct. x minus 1, 1 minus x दिया हुआ है, मुझे x minus 1 चाहिए, तो माइनस को कॉमन ले लो. x minus 1 अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 3. ठीक है, ये जो माइनस था ये मैंने बाहर ले लिया और बाहर लेके नीचे आ गया, तो x minus 1 अपॉन में माइनस का 3. नेक्स्ट 7y minus 14, मैंने कहा 7 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा y minus 2 अपॉन में 2p, अपॉन में 2p. पर मेरे को तो y माइनस y1 अकेला चाहिए, ये 7 भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए. तो इस 7 को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं, इस 7 को जब मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 2p by 7, 2p by 7. The third point is exactly correct, that is 7 minus z minus 3 upon में 2. Now if I compare, these are my correct observations. So these lines could be related. For the second line, सबसे पहले मैंने -7 को कॉमन लिया, तो अंदर मेरे पास बचेगा x minus 1 अपॉन में 3p. मैंने -7 को कॉमन ले लिया, ठीक है. देन y minus 5 is totally correct. देन z minus 6 अपॉन में 5. z minus 6, यहाँ पे भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ z minus 6 के लिए, यहाँ पे अपॉन में बचेगा 5, अपॉन में बचेगा 5. अब दोबारा से रिफ्रेम करेंगे तो x minus 1, या माइनस ऊपर से नीचे आ गया और 7 भी नीचे चला जाएगा, तो दैट इज 3p by 7. दिस वुड बी y minus 5 अपॉन में 1, and this would be z minus 6 upon में minus 5. Now I can say that my lines can be related. My lines can be related. अब ये इस वाले फॉर्मेट से ये वाली मेरी लाइंस जो है मैच हो रही हैं. So I have got my equations for line 1 and line 2. Line 1 and line 2. The correct equations. So now what is my B1 vector? My B1 vector is minus 3i cap plus 2p by 7 j cap plus 2k cap. What is my B2 vector? That is 3p by 7 I cap plus j cap minus 5 k cap. Okay, you can see it over here as well. This is my B1 vector. These are forming my B1 vector, and these are my B2 vector. These are my points for B2 vector. So the B1 vector and the B2 vector have been slated on the right side. Now what I need to do is I need to find the value of P. I need to find the value of P so that these are at the right angles. So if these are the right angles, B1 dot B2 should be equal to 0. If B1 dot B2 is equal to 0, what I can say is minus 3 into 3p by 7, I wala I से, plus 2p by 7 into 1, j वाला j से, plus 2 into minus 5 should be equal to 0. कंपेयर करेंगे तो 2 into minus 5 उधर जाके 10 हो गया, 11p by 7 is equal to 10. एंड p की वैल्यू 7 ऊपर चला गया 70, 11 नीचे आ गया 70 by 11. दैट्स माय फाइनल आंसर. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कुछ भी अलग नहीं था. द मेजर थिंग वी नीड टू डू वाज ऑन द लेफ्ट साइड, कि जहां आपको इक्वेशंस गलत फॉर्मेट में दी हुई थी और आपको करेक्ट फॉर्मेट आपको ये पता होना चाहिए था कि x माइनस x1 होता है, y माइनस y1 होगा और z माइनस z1. अगर आपके पास इस फॉर्मेट में इक्वेशन है तो ही वो सही इक्वेशन है, वरना वो इक्वेशन सही नहीं है, आपको उस फॉर्मेट में लानी पड़ेगी जैसे हम यहाँ पर लाए. तो 1 minus x कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, it must be x minus 1. It must be x minus 1. Okay, moving ahead. Distance between two parallel lines. Now consider we have two lines, r1 is equal to a1 vector plus lambda b vector, and our a2 vector is equal to mu b vector. Now the one thing if you notice over here is that the b vector is same here as well and here as well. पिछली बार जब हमने किया था, if you remember,
तो हमने आपको ये बताया था कि B1 वेक्टर और B2 वेक्टर अलग अलग होते हैं। जब हमने एंगल बिटवीन लाइंस निकाला था तो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर अलग अलग थे, बट क्योंकि यहाँ पर लाइंस पैरेलल हैं तो B वेक्टर क्या होगा, सेम। B वेक्टर इज सेम फॉर बोथ लाइंस बिकॉज दीज बोथ लाइंस आर पैरेलल, दीज बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब अगर ये पैरेलल है तो वी हैव द डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, आपको A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर करना है। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सॉरी, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। पहले आप A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालेंगे। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालने के बाद आपको उसको क्रॉस करना है। किससे क्रॉस करेंगे, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकाला, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर से, क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर से, और अपॉन में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अपॉन में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वंस अगेन आपसे डेरिवेशन कहीं नहीं पूछी जाएगी, ये कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। डेरिवेशन अगर मैं करा भी दूंगा तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप लोग डायरेक्ट इस चीज को, फॉर्मूले को रिमेंबर करेंगे। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। Moving ahead, now consider I have this question. Find the distance between the lines L1, L2 given by this. These are the two lines which have been provided to me. Shortest distance का फॉर्मूला मेरे को पता है। उससे पहले मैं अपने वेक्टर्स को पहले, सबसे पहले वेक्टर्स लिख लेता हूं मेरे पास क्या क्या है। A1 वेक्टर could be given as I cap plus 2j cap minus 4k cap. A2 वेक्टर दूसरी वाली लाइन के लिए that is 3I cap plus 3j cap माइनस 5k कैप। नाउ बी वेक्टर अगर आप ध्यान से दोबारा से देखेंगे तो बी वेक्टर दोनों लाइंस के लिए सेम है। बी वेक्टर दोनों लाइंस के लिए क्या है, सेम। और क्योंकि बी वेक्टर सेम है तो मैं ये कह सकता हूं कि दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज बी वेक्टर फॉर फर्स्ट लाइन, दिस इज बी वेक्टर फॉर सेकंड लाइन। सिंस these two vectors are same, I can say b vector is same for both the lines, for both the lines. So b vector is given as 2I plus 3j plus 6k. Now A2 vector minus A1 vector, 3 minus 1 that is 2I cap, 3 plus 3 minus 2 plus का j cap, minus 5 minus minus 4 तो that is minus k cap। और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, so that would be equal to 49। एंड B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है, 7। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर 2I प्लस j माइनस k को क्रॉस करेंगे 2I प्लस 3j प्लस 6k से। दीज डिटेल्स हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड ऑन द राइट साइड। अपॉन में आ जाएगा 7 जो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मेरे पास आया 9I कैप माइनस 14j कैप प्लस 4k कैप। अब 9, 14 और 4 इसका ले लेंगे आप मैग्नीट्यूड। क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो 9 का स्क्वायर होता है, मैं आपको रफ में थोड़ा सा कर देता हूँ, 81। 14 का स्क्वायर होता है 196। 4 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 4 10 11 9 9 18 281, 291 आ रहा है। 14 का स्क्वायर 196, 9 का स्क्वायर 81, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। 4 का स्क्वायर इज 16, तो 6 और 6 12 और 1 13 और 9 और 9 18, तो यहाँ पर आ जाएगी आपके पास वैल्यू 19, 293। सो 293 अपॉन में 7 दैट इज माय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज माय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी वेक्टर फॉर्मेट में नहीं होता, तो आपको 9 14 9 और 14 4 इन सबका क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। वंस यू टेक द मैग्नीट्यूड यू विल गेट द आंसर रूट का 293 अपॉन में 7। मूविंग अहेड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस। अब आपको दीज लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोबारा से एक बार तो आप ये पाएंगे कि दिस इज 5 2 1, 5 2 1 एंड दिस इज ऑल्सो 5 2 1। 5 2 1 5 2 1 मतलब दोनों का बी वेक्टर सेम है, दोनों का बी वेक्टर सेम है, इसका मतलब दोनों क्या है, पैरेलल, दोनों क्या है, पैरेलल है। ओके, एंड दिस इज नॉट करेक्ट। दोनों कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस। Now let me write my vectors. My A vector would be equal to 4I cap
माइनस y+1 दैट इज माइनस जे कैप, और z के साथ कुछ भी नहीं है तो दैट इज 0 के कैप। अगर आपको लिखना है लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 के कैप। A2 वेक्टर वुड बी आई कैप 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। नाउ द B वेक्टर वुड बी 5i, दोनों का सेम है, प्लस 2j प्लस के कैप। अब बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। सो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज माय रूट 30। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बाकी जो सारी वैल्यूज हैं A2 माइनस A1, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो A2 माइनस A1 माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, क्रॉस करेंगे बी वेक्टर से, सो दैट इज 5i प्लस 2j प्लस k, क्रॉस करने पे रिजल्ट आएगा माइनस 3i प्लस 18j माइनस 21k अपॉन में रूट का 30, अपॉन में रूट का 30। अब इसका दोबारा से इसका स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर इज 441, 18 का स्क्वायर इज 324 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। सो आई हैव 9 1 10 4 14, 4 2 6 और 1 7 एंड 774। सो व्हाट आई हैव इज 774, और 30 भी अपॉन में ही है तो अपॉन में 30 यूनिट। दैट इज माय फाइनल आंसर। ओके, वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, ये जो रूट की वैल्यू है ये पूरा रूट में है, 774 भी रूट में है और 30 भी रूट में है, तो ये कंप्लीटली पूरा रूट में आएगा। ठीक है, 774 इज द मैग्नीट्यूड जो हमने ऊपर वाले वेक्टर का निकाला है। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, मूविंग अहेड। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, अभी तक हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्यू लाइंस। व्हाट आर माय स्क्यू लाइंस? स्क्यू लाइंस आर लाइंस विच आर नॉन इंटरसेक्टिंग, पैरेलल भी नहीं है इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। लाइंस या तो पैरेलल होती हैं या फिर इंटरसेक्टिंग होती हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस? ये नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल, और सबसे बढ़िया बात क्या है जो मेजर पॉइंट है इसका, दीज आर नॉन कोप्लेनर। एक प्लेन पे पड़ेंगी ही नहीं, दो अलग अलग प्लेन्स की लाइंस हैं, इसीलिए दे आर नेवर इंटरसेक्टिंग, दे आर नॉट पैरेलल इन फैक्ट। सो दीज आर, if in the viva if anyone is asking you what are, give me definition about skew lines, yeah, what are skew lines, you must tell them that lines which are non intersecting, non parallel and non coplanar. Non coplanar is the major issue, is the major point, that these lines are neither intersecting nor parallel. Consider I have two lines, r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector, a2 vector plus mu b2 vector. So the shortest distance, जैसे a2 minus a1 किया था बिल्कुल सेम एज इट इज करेंगे, पर पिछली बार एक ही b वेक्टर था, यहाँ पर दो b1 और b2 अलग हैं, तो b1 क्रॉस b2 का करेंगे प्रोडक्ट क्रॉस और उसको डॉट करेंगे। पिछली बार अगर आपको याद हो तो यहाँ पर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट था, क्या था? क्रॉस, क्योंकि वो b से क्रॉस हो रहा था। इस बार b1 और b2 क्रॉस होंगे और यहाँ पर क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये वो फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। पैरेलल लाइंस में b1 b2 नहीं होता, सिर्फ b वेक्टर होता है, तो वहां पे वो क्रॉस b वेक्टर हो जाएगा। नाउ कंसीडर आई हैव दिस, okay, let me identify my vectors first of all. So the first vector is I cap plus j cap. A1 vector is I cap plus j cap. Now A2 vector, ये वाला वेक्टर है जो सेकेंड लाइन में है, 2i plus j minus k. B1 वेक्टर लैम्डा के साथ वाला 2i minus j plus k, 2i minus j plus का k. और B2 वेक्टर ये जो म्यू के साथ है 3i माइनस का 5j प्लस का 2k। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो दो में से एक गया एक, j का j पूरा कैंसिल और माइनस का k आ जाएगा, तो आई हैव i कैप माइनस k कैप। b1 क्रॉस b2 ये दोनों का क्रॉस करेंगे, जो वेक्टर में हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है डिटर्मिनेंट मेथड से, तो डिटर्मिनेंट मेथड से क्रॉस करने के बाद आ गया 3i कैप माइनस j कैप प्लस 7k कैप। अगर इसको आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे 7 का 49 प्लस 150 और 9 रूट का 59, रूट का 59
9. दिस इज माई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये मेरा फॉर्मूला है. a2 माइनस a1 लेफ्ट साइड में निकाल दिया, यहाँ पे पुट करा, डॉट करा 3i माइनस j माइनस 7k से, और रूट का 59. रूट का 59. अब रूट का 59 नीचे लिखने के बाद अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो i वाला i से यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 1 इंटू में 3 प्लस 0 इंटू में -1 प्लस -1 इंटू -7 अपॉन में रूट का 59. सो आई हैव इज 7 इंटू 1 7 प्लस 3 10 और 0 वाला 0, तो 10 अपॉन रूट 59 यूनिट. दिस इज माई फाइनल आंसर. 10 अपॉन 59 इज माई फाइनल आंसर. डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई से, जे वाला जी से, के वाला के से. तो 1 का 3 से, जे का यहाँ कुछ भी नहीं था तो मैंने लिखा 0 और यहाँ पर -1, फिर -1 और 7 के साथ -7. सो दिस इज हाउ यू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. कह रहा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस. आई नीड टू एनालाइज द वेक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो माय a1 वेक्टर ऊपर से यहां से निकलेगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप. a2 वेक्टर ऊपर से 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप. We have done a number of questions from Cartesian to vector and vector to Cartesian. b1 वेक्टर पहले वाले में जो डिनोमिनेटर में आ रहा है 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप. b2 वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. नाउ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर 3 माइनस -1 4i 5 माइनस -1 6j 7 माइनस -1 8k. b1 क्रॉस b2 करेंगे तो आई हैव माइनस का 4i माइनस का 6j माइनस का 8 कैप बाय डिटरमिनेंट मेथड. और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज रूट का 116. रूट का 116. मूविंग अहेड, डॉट प्रोडक्ट करेगा a2 माइनस a1 से, डॉट b1 क्रॉस b2 से, अपॉन में आ जाएगा रूट का 116. रूट का 116. अब ऊपर आएगा 116, जैसे 4 का 4 से करेंगे आप. लेट मी डू इट ओवर हियर फॉर यू. जब आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो आप करेंगे 4 का -4 से, तो 4 का -4 से करेंगे तो दैट इज माइनस का 16. फिर 6 का 6 से का -6 से तो माइनस का 36. फिर आ जाएगा 8 का -8 से माइनस का 64. और नीचे रूट का 116 चल ही रहा है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस का 116 ऊपर अपॉन में रूट का 116 नीचे. मॉडुलस से बाहर आएगी वैल्यू तो ऊपर हो जाएगी 116 और नीचे हो जाएगी रूट का 116. रूट के 116 से रूट का 116 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में मेरे पास बचेगा 116 यूनिट. दिस इज माय फाइनल आंसर. रूट का 116. सो दैट्स द आंसर आई हैव ओवर हियर. ओके, यू मस्ट आइडेंटिफाई a1 a2 b1 b2. उसके बाद तो सीधा सीधा फॉर्मूले में डालना है, कुछ खास करना नहीं है. बट यस, b1 क्रॉस b2 जब आप डिटरमिनेंट मेथड से निकालेंगे सो दैट मस्ट नॉट बी रॉन्ग. वो आपको पता होना चाहिए b1 क्रॉस b2 कैसे निकलेगा. Find the shortest distance between the lines whose vector equations are given as this. Now, the best thing in this question is, अब इस क्वेश्चन में हमको लैम्डा और म्यू का कहीं पे भी यूज नहीं दिखेगा. ठीक है. सेकेंडली यहाँ पर टी और एस लगे हुए हैं और हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर अलग अलग डिफाइन नहीं हो पा रहे. तो पहली वाली लाइन को कंसीडर करते हैं. अगर मैं पहली वाली लाइन जो है, जो ऊपर वाली फर्स्ट लाइन है, इसको मैं इस तरह से लिखूं, 1 का आई से करेंगे तो ये बचेगा आई कैप माइनस टी का आई से करेंगे तो ये बचेगा टी आई कैप प्लस टी का जे से करेंगे तो टी जे कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप -2 टी के कैप. अब इसमें आई वाले अलग करें और जे वाले अलग कर दें. ठीक है. आई वाले अलग और जे वाले अलग, टी वाले अलग, मतलब ये जो बिना टी वाले हैं 1 2 और ये 3, इनको अलग करो. और इसके बाद जो टी वाले हैं 1 2 और 3, इनको अलग से लिखो. तो इनको जब हम अलग से लिखेंगे सो आई विल फाइंड ओवर हियर इज आई कैप प्लस आई कैप एंड -2j. So I have is I cap -2j cap plus 3k cap.
plus t j cap or plus t I cap, consider this I, plus t j cap minus 2t k cap, minus 2t k cap। आई वाले के साथ माइनस आ रहा था, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस टी आई कैप। ठीक है, अब इसको और फॉर्मेट करा तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस टी को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, माइनस आई प्लस का j और माइनस का 2k। ठीक है, इन द सिमिलर पैटर्न अब दूसरी वाली लाइन को भी फॉर्मेट करते हैं। दूसरी वाली लाइन जो आर वेक्टर दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, एस आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2s j कैप माइनस j कैप माइनस 2s k कैप प्लस k कैप। और ये प्लस नहीं होगा, ये वाला भी माइनस होगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस 2s j कैप माइनस 2s k कैप माइनस k कैप, बाकी सब सही है। फिर इसके बाद हमने क्या करा, आई वाले अलग और जे वाले अलग, जैसे आपने पहले किए थे, ये वाला आई जे और के, और एस वाले कौन से हैं, 1 2 और 3, इनको अलग अलग लिख लेंगे। अलग अलग लिखने से ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस एस आई प्लस 2s जे कैप 2s जे कैप माइनस 2s के कैप। अब अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस एस को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। नाउ दिस इज वन एंड द सेम थिंग। कंसीडर करें कि ये जो आपका एक सेकंड, ये जो t है अगर इसको लैम्डा होता या ये जो s है ये म्यू होता, तो क्या आपको आई ए वेक्टर और बी वेक्टर आराम से मिल जाएंगे। तो आपका जो ए वेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आई माइनस 2j प्लस 3k। आपका जो ए टू वेक्टर नीचे आ रहा है, आई माइनस जे माइनस के, आई माइनस जे माइनस के माइनस के माइनस के प्लस का के कैसे आ गया, माइनस का के आएगा। ठीक है, सो दिस इज समथिंग रॉन्ग ओवर हियर, दिस इज माइनस के, वेट फॉर अ व्हाइल, ये होगा माइनस का के, ठीक है, सो दिस इज माइनस का के, देन b1 वेक्टर माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, बी वेक्टर माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, और b2 वेक्टर i प्लस 2j माइनस 2k। Now you have all these vectors, a1 vector, a2 vector, b1 vector, b2 vector. Formula would remain same, a2 vector minus a1 vector dot b1 vector cross b2 vector upon में b1 cross b2 का magnitude. The details have already been provided above. a1 vector, a2 vector हमने अलग अलग आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है, एंड यू नीड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। So this is all for now. In the second video, in the next class, we'll be working on the HOTS questions, some extra questions from exemplar and previous year questions as well. Okay, thank you very much.